Hello students, how you all? I hope you enjoyed your summer vacation. As I know it was a very short duration, but as you all know that due to pandemic, we have to cope up with that pandemic that has been spread all around the world. As you all know that the education system has been interrupted just because of COVID-19. So don't think about it was very little duration of time that has been given to you all, because we have to be in touch of educations. We have to be in touch of study if you really want to gain something or achieve something in your life, because this very thing is going to help you in your future, in your career. So with the positive thoughts, let's start the next poem, and that is about how to tell wild animals, written by composed by Caroline Wells. This poem is composed by Caroline Wells, and as you all know that how to tell wild animals is exactly the title given by the poet. It means we are going to study, we are going to deal with the poem that is all about wild animals of different features. As you all know that in a jungle or in a forest, you see different kinds of animals living there with different qualities or features gifted by God. So let us see or distinguish what kind of animals has been talked about by the poet in this poem. So let's start the poem. Let us see the very first stanza of this poem. So this humorous, it's all about comical poem, a humorous poem. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. So in this poem, the poet is telling about when you are going to read out this poem, you must be very careful. While reading this poem, you must be in a high pitched tone while reading this poem, and you are going to see what kind of animal has been described in this poem. So let us see the very first stanza of this poem. If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know that it is the Asian lion. So what is the meaning of this poem? What is the actual definition of this stanza? So as you all know that if ever you go by chance to jungle in the east, it means if you got a chance to go into the jungle, so what do you see there? You see lots of animals over there. अगर आप कभी किसी दिन जंगल जाने की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप जंगल जाते हैं, वहाँ पर अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जंगल में आप क्या देखेंगे? वाइल्ड एनिमल्स को देखेंगे. तो वहाँ पर अगर आपको कोई एनिमल नज़र आता है, इफ़ यू गेट ए चांस टू सी एनी एनिमल, सो हाउ कुड यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट एनिमल? आप उस एनिमल को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? यही इस फॉर्म में बताया गया है कि कुछ उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, जो पोएट ने बताया है कि इस तरीके से आप एनिमल्स को पहचान सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा एनिमल है. यहाँ पर पहले स्टैंजा में जो पोएट बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपको कभी किसी दिन मौका मिलता है जंगल जाने का, अगर वहाँ जाते हैं, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड थॉर्नी बीस्ट, और अगर आप किसी एक बहुत बड़े बीस्ट मीन्स एनिमल को अपने सामने आते हुए देखते हैं, एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो इतनी तेज चीखता और चिल्लाता है जिससे आप
की जान जाने वाली होती है। इट मीन्स यू आर गोइंग टू डाई जस्ट बिकॉज ऑफ रोरिंग ऑफ दैट एनिमल। उस एनिमल के रोर से ही, दहाड़ से ही आपकी जान निकल जाती है। इट मीन्स यू विल नो इट इज द एशियन लायन। इट मीन्स वो कौन है, वो कोई दूसरा एनिमल नहीं है बल्कि वो कौन है, एशियन लायन है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टैंजा। नाउ लेट अस सी द सेकंड स्टैंजा। Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Mean to say, अगर आप जंगल में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, roaming is walking around here and there without any purpose. अगर आप वहाँ जंगल में घूम रहे हैं एंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और आपके सामने एक नोबल यहाँ कहा गया है टाइगर को, कि अगर आपके सामने एक वाइल्ड बीस्ट नजर आता है तो काफी नोबल होता है नेचर में और आपको वो ग्रीट्स करता है, मीन्स तो आपको रिस्पेक्ट शो करता है, और जिसकी बैक पर स्ट्राइप्स होती हैं यानी कि पट्टियां होती हैं, किस कलर की, ब्लैक कलर की, और ऑन ए येलो ग्राउंड, और वो होता कहाँ पर, वो एक येलो ग्राउंड पर खड़ा है और आपको क्या कर रहा है, वो ग्रीट्स कर रहा है, थैंक्स गिविंग कर रहा है, काफी नोबल है, बहुत ही काइंड है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और उसके बाद क्या कर रहा है, वो आपके तरफ एडवांस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, एंड ही इज गोइंग टू ईट यू अप, और वो आपको खाने जा रहा है। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बेंगल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मीन्स टू मेक आउट, टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स इस तरह से अगर कोई एनिमल करता है तो आप समझ जाइएगा वो कौन है, वो कोई दूसरा एनिमल नहीं है बल्कि वो क्या है, टाइगर है। कौन सा टाइगर है, बंगाल टाइगर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टैंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट you whose hide with spots is papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Phil do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. इस स्टैंजा में किसके बारे में बात कर रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट अ लेपर्ड। लेपर्ड की क्या स्पेशलिटीज है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते हैं। अगर आप और आगे चलते हैं, जंगल में चलते रहते हैं और आपको एक बीस्ट, मीन्स इफ यू हैव गॉट ए चांस टू सी एन एनिमल, अगर आपको एक जानवर दिखाई देता है, आपके नजर में, आपके व्यूज आपके साइड में नजर आता है, whose hide मीन्स यहाँ पर स्किन की बात कर रहा है, with spots is papered, और उसके पूरे बॉडी पर उसकी जो स्किन है वहां पर स्पॉट्स पड़े हुए हैं, ब्लैक कलर का स्पॉट्स पड़ा हुआ है उसके चारों, उसके पूरे बॉडी पर, ऑल ओवर हिज बॉडी you see lots of black spots all over his body. As soon as he has leapt on you, जैसे वो आपके तरफ उछलकर कूदकर आता है, you will know it is the leopard, तो आप समझ जाइएगा वो कोई और नहीं बल्कि वो कौन है, leopard है, तेंदुआ है। It just like टाइगर और एनिमल, वो टाइगर या एनिमल की तरह ही दिखता है, बट उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। They will do no good to roar with pain, तो इट मीन्स अगर वो आपके पर लपक के आता है, आपको कैच करने के लिए आता है, आपको पकड़ने के लिए आता है, इट मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ क्राइम। चिल्लाने से, चीखने से कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वेदर यू आर इन ग्रेट पेन, अगर आपको बहुत दुख भी है और दर्द में हुई हो, आप चिल्ला रहे हो, इट विल ऑफ नो यूज क्राइम ड्यू टू पेन, because he will do the work assisted as he is going to attain. जिस चीज को उसने एक बार डिटरमिन्ड हो गया है वो काम करके रहेगा। he will only leap and leap again, वो आपके तरफ क्या करेगा, बार बार कूदता रहेगा, उछलता रहेगा, unless or until he kills you, जब तक वो आपको मार नहीं देगा। Now let us see the next. If whether you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, but sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. What does it mean? In this stanza, the poet is talking about a bear. एक भालू के बारे में बात कर रहा है वो, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स बता रहा है। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हैं, अगर आप सपोज करो कि और आगे जाते हो
और आप जंगल में रोम कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, और आपको एक क्रिएचर मीन्स एक एनिमल से मिलने का मौका मिलता है। इफ़ यू गेट अ चांस टू मीट एन एनिमल एंड हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको क्या करता है, गले लगा लेता है। जैसे आप उससे मिलते हो आपको क्या करता है, गले लगा लेता है। अब आप खुद सोचिए, एक बेयर आपको गले लगाएगा तो आपको कैसा फील होगा? आपको अच्छा फील होगा या आप शॉक से सरप्राइज हो जाओगे? इवन ही कैन किल यू, आपको मार भी सकता है। लेकिन यहाँ पर इस ह्यूमरस पोम को पढ़ते हुए आपको फील होगा कि किस तरीके से पोइट ने वर्ड्स का कलेक्शन करके, इसका सिलेक्शंस करके उसने इस पोम को क्रिएट किया है, कंपोज किया है। अगर वो क्रिएचर आपको हक करता है, गले लगाता है, इट मीन्स वो कौन है? वो एक बेयर है, वो एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, अगर आपको कोई डाउट है, उसके बाद भी अगर गले लगाने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। केयरस मीन्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जेंटल लविंग टच। तो फिर आप उसके टच करने से, जेंटल तरीके से वो टच करेगा, वो आपको उसकी फीलिंग से आप समझ जाइएगा कि वो कौन है? एक बेयर है, एक भालू है। ओके स्टूडेंट्स, so to distinguish beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. हाँ, कुछ एनिमल्स को, कुछ बीस्ट को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। जो वो बीस्ट और एनिमल क्या होते हैं, वो अपने शिकार को किस तरीके से पॉन्च करते हैं, किस तरीके से उसे अटैक करते हैं, यहाँ इस स्टैंजा में बता रहा है। और इस स्टैंजा में उसने दो एनिमल को लिया है, एक है आपका क्रोकोडाइल और एक आपका हाइना है। और इन दोनों के बीच उसने कंपैरिजन की है, और कंपैरिजन करके उसने बताया है कि किस तरीके से हम हाइना को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम क्रोकोडाइल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप क्रोकोडाइल को देखें, नॉविक मीन्स होता है, यहाँ पर दिया हुआ है समवन न्यू टू योर जॉब। अगर आपको, इफ यू हैव नो नॉलेज ऑफ आइडेंटिफाइंग एनी एनिमल्स and you see the animal the very first time in your life, that it means you will get confused while seeing any animal in your life because you are seeing the first time in your life. Then आपको क्या करना है, वो आपको पोएट बता रहा है कि अगर आप जिंदगी में पहली बार किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आप ऐसे क्या उस चीज़ में, उस एनिमल में देखें, इससे आपको ये पता चलेगा वो कौन सा एनिमल है, वो किस से बिलोंग करता है। तो कह रहा है कि The crocodile you always may tell from the hyena thus. क्रोकोडाइल और हाइना, ये दोनों की जो स्पेशलिटीज़ है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हें डिफ्रेंशिएट बहुत ही इजली तरीके से क्या नाम है पोएट ने किया। और कह रहा है कि इनको आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट वन थिंग यू कीप इन योर माइंड, एंड व्हाट इज दैट? हाइना कम्स with merry smiles. Whenever you see an animal coming with a laughter, coming with smiles on her face, it means it's all about a hyena. अगर किसी जानवर को आप देखते हो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आता है, तो आप the very first you see there is no other animal except a hyena. वो कोई दूसरा जानवर नहीं है, बल्कि वो कौन है? एक हाइना है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। अगर आप किसी जानवर को, एनिमल को रोते हुए देखते हो, आप यहाँ पर देखिए वो रोते हुए, हम यहाँ पर कितनी ह्यूमरस, कितनी कॉमिकल वर्ड का यूज़ किया है पोएट ने, कि पढ़ते हुए भी हमें हंसी आ रही है कि अगर आप किसी जानवर को रोते हुए देख रहे हो तो इट मीन्स वो कोई दूसरा नहीं है, बल्कि वो कौन है? क्रोकोडाइल है। नाउ लेट अस सी द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, द ट्रू कैमेलियन। कैमेलियन मीन्स क्या होता है? ग्रेट होता है, वो ऑलवेज सिट ऑन द ट्रीज, यू नो। I think you must have heard the name of chameleon, and you must have seen the chameleon talking about. So the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. What is the poet talking about? In this stanza, the poet is talking about
a lizard, sorry, a lizard and a chameleon. लिजर्ड और कैमेलियन के बारे में बात कर रहा है, और कैमेलियन की कंपैरिजन उसने लिजर्ड से किया है कि आपने छिपकली तो देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन लिजर्ड इन योर हाउस, आपने अपने घरों में लिजर्ड जरूर देखा होगा। तो इन द सेम वे कैमेलियन भी होते हैं, कैमेलियन भी लिजर्ड की तरह होते हैं, उन्हीं की तरह होते हैं। एंड ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उनको कोई कान नहीं होते, यू सी देम, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उनके पंख भी नहीं होते, उनके कोई पंख भी नहीं होते। एंड इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और आप किसी पेड़ को अगर आप देखते हो और पेड़ पर देखने के बाद आपको कोई भी क्रिएचर नजर नहीं आ रहा है, कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है, इट मीन्स वहां पर कैमेलियन के होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होती है। क्योंकि कैमेलियन क्या होते हैं कि वो अपने कलर्स को चेंज करते रहते हैं, वो अपने रंग को चेंज करते रहते हैं। अगर वो जिस पेड़ पे बैठे हुए हैं उस पेड़ की तरह अपने कलर को, अपने स्किन को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसीलिए बहुत ही मुश्किल होता है उन्हें देखना। दिस द कैमेलियन इज सी। इसके बाद अगर आपको पेड़ पर कोई नजर नहीं आ रहा है, इट वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, कैमेलियन दिखाई देगा, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कैमेलियन के वहाँ पर होने के। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मैंने इस पोम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो यू कैन कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी और मैसेज मी, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर solution, try to solve a problem. So thank you so much for watching this video. Thank you so much.